We have been discussing Tests of D'Urberville by Thomas Hardy. We have taken an article to read and understand from an angle. तो आज उसी टॉपिक को लेट्स कंटिन्यू इट। आज जो हम देखेंगे वो है व्हाट वाज द सोशल बैकग्राउंड व्हेन हार्डी रोट दैट नॉवल टेस्ट ऑफ D'Urberville. What was the larger social background? What was happening on larger scale on the history and the political side? And then we take the character traits, a few characters, especially the Tess, Alec and Angela. तीन characters को हम डिस्कस करेंगे और चूंकि ये ओवरऑल एक सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस है तो उसी पर्सपेक्टिव में ही हम इनका एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो सोशल बैकग्राउंड। The 19th century Britain was the greatest economic power of the world. When this novel was written, Britain was one of the largest empire of the world. It was an extraordinary complex age, which has sometimes been called the Second English Renaissance, according to some critics. Age of Reason, it was also called. On the larger scale, remember, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा उस तब्दीली में आ चुका था, ये बड़े स्केल पे जो तब्दीलियां आ रही थी। It is, however, also the beginning of the modern times, according to Miller. Actually, that was the beginning of the जो आज की दुनिया है उसकी स्टार्ट हो रहा था वहां से। The period between 1837 and 1901 is known as the Victorian Age. इस टाइम को हम विक्टोरियन एज कहते हैं। क्यों? नेम्ड सो फार या सो आफ्टर द क्वीन विक्टोरिया। These were two historical elements which affected the English society of the 19th century. दो बड़े वाकयात ने जो सबसे ज्यादा मुतासिर किया उस टाइम से लेकर अब तक के हालात वाकयात को हम इसी बैकग्राउंड में अक्सर देखते हैं, वो है कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। Both of these brought great increase in wealth, making Britain the leading economic power of its time. Industrialization is the result of machine and science and learning, or colonization again is the result of the knowledge of the humanism, dark ages से जैसे वेस्टर्न यूरोप बाहर आता है, यानी जब रिलीजन का होल्ड वो तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं ट्रेडिशन और रिलीजियस शैकल्स को, जो उनको सोचने पे पाबंदी थी, उनको उनकी क्रिएटिविटी पे पाबंदी थी, इल्म लेने पे पाबंदी थी। चर्च का मुकम्मल होल्ड था डार्क एजेस के अंदर। 1000 साल तक तकरीबन ये होल्ड रहा है, बहुत बड़ा लंबा टाइम और बहुत ही खौफनाक वो पीरियड है जो वेस्टर्न यूरोप में देखा है। पूरी दुनिया में सबसे शायद पीछे थे वो लोग। लेकिन फिर क्या हुआ? ह्यूमनिज्म आता है, यानी थियोसेंट्रिक वर्ल्ड से ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड हो जाती है। ज़हनों को आज़ादी मिलती है और लव ऑफ लर्निंग, नॉलेज, साइंस और इंग्लिश डेवलप होती है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे बहुत से लोग यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो they hate English language because they called it is the language of the infidels. They also hate because this language basically inherently critical as compared to the Urdu language or the other languages. English
was born simultaneously with the humanism and science. So science and English, you can say, as an analogy, you can say, call them the two sisters, born together, brought up together, and having very close relationship. So English studies is by birth, inherently by default, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज इज क्रिटिक एंड साइंटिफिक. So however, we are talking about the history that humanism was born and Western Europe, they liberated themselves from the shackles of the religion, the shackles of the tradition and the unreason, the dogmatism, and they searched science, technology they developed. And after that, when they discover that they have better technology, they have knowledge, they develop science, then starts the negative use of their knowledge and the science. When they saw that other countries, including India, including Africa, China, and America, Latin America, so all the Western Europe, different countries formed their own empires. Portuguese, they formed own empires. Dutch formed their Dutch Empire, French Empire, there was German Empire, there was Spanish Empire, and one of the largest empire was the British Empire. So they colonized other territories to exploit them, because they saw that they have less knowledge, less advancement, and no technology and science. They were far behind in science and technology. So they took the advantage of their advancement and they colonized all the territories, and then subsequently they looted them, exploited them, and built themselves. कहते हैं कि मुस्तनसर ने लिखा अपने सफरनामे में कि जब मैं लंदन गया और लंदन का मैंने सबवे देखा, जो अंडरग्राउंड लंदन का ट्रेन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द सबवे ऑफ द लंदन. ये एक मिरेकल है पूरा कि लंदन पूरे शहर के नीचे ट्रेनें चलती हैं अंडरग्राउंड. और डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि ये अंग्रेजों ने ये मद्रास के 1 साल के लगान से ये बनाया था. ये सारा जो पैसा इस पे लगा था, ये इंडिया के एक शहर मद्रास है, उसे जो 1 साल का टैक्स, लगान कहते थे टैक्स को. आमिर खान की फिल्म लगान आपने अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि ये टैक्स कैसे वसूल करते थे और क्या क्या करते थे यहाँ पे. तो लगान 1 साल का कलेक्ट करके ने लंदन का सबवे बिल्ड किया था. सो दे लूटेड द कॉलोनाइज्ड एंड देन बिल्ड देमसेल्व्स. दिस इज द डार्क reality of the modern times. So that was the period of वापस चलते हैं उसमें 19th century, when they were expanding, they were building, and the largest empire was held by the British. So that was the colonization and industrialization के बारे में हम थोड़ा और भी देख लेंगे. Both of these brought great increase in wealth, making Britain the leading economic power of its time. It was the time of prosperity, imperial expansion, and the great political reform. During that time, the factory system gradually replaced the system of the people working in their own homes and in small workshops. छोटे मोटे जो काम थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने इनको रिप्लेस कर दी. मशीन आ गई. This caused great shift in social structure. अब colonization और industrialization ने दोनों ने
उस टाइम के इंग्लैंड को बहुत ज्यादा बदला है, खैर पूरी दुनिया पे असर डाला है। हम खुद पोस्ट कलोनियल कंट्री हैं और हम जानते हैं कि कलोनियलिज्म से जो डैमेज हुआ इंडिया पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस वक्त हिंदुस्तान कहलाता था, कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो पूरा हिंदुस्तान दुनिया में 20% वेल्थ प्रोड्यूस करता था, और जब वो यहाँ से गए हैं तो ये पूरी दुनिया में 2% वेल्थ प्रोड्यूस करता था। अभी भी उसी के लगभग होंगे कहीं। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दूसरों का, और उनका अपना सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ। So during that time, the factory system gradually replaced the system of people working in their homes and in small workshop. This caused great shift in social structure, making owners of the industries and the trades people more powerful. नतीजा क्या निकला? एक न्यू क्लास इमर्ज होती है, बोर्जवा क्लास, having the owner of the machine, the owner of the capital. This was the new power. फ्यूडलिज्म से इंडस्ट्रियलिज्म में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी भी यहीं से निकलती है। So this caused the great shift in the social structure, making owners of the industries and the trades people more powerful. The industrial revolution created a great demand for female and child labor. और इससे एक और नतीजा क्या निकला कि फीमेल जो पहले काम नहीं करती थी या घरों में ही ज्यादा काम करती थी, इंग्लैंड की जो खवातीन थी, और बच्चे तो बिल्कुल ही काम नहीं करते थे, अब उनसे भी काम लिया जाने लगा, who were often made to work 12 hours a day suddenly, and even longer. Some writers and the intellectuals of that period protested against it. और बहुत ज्यादा लिखा है। अगर आप एक और नॉवल देखें जो सोशल चेंज को सही कैप्चर कर रहा है, इसी टाइम में तकरीबन वो भी लिखा गया, एंड दैट इज हार्ड टाइम्स बाय डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स। हार्ड टाइम्स। डिकन के और भी 3-4 ऐसे नॉवल हैं जो सोशल क्रिटिसिज्म है। The reforms did not change the reality of the working classes, although they did gain some rights. ये सारी तब्दीलियां जो सोशल बैकग्राउंड में आ रही थी, इसके बेनिफिशरीज तो एलीट क्लास ही थे। जो पावरफुल क्लास थी वो तो और ज्यादा अमीर हो गई थी, और जो वर्किंग क्लास है उनको बहुत कम इस दौलत का, इस कॉलोनाइजेशन का, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा हुआ था। गरीबों को बहुत कम फायदा हुआ था, और गरीब माशरे का आपको पता है 90% होते हैं, ज्यादातर लोग तो गरीब होते हैं। In the 19th century, there was a great shift of the population from rural to urban areas. और ये पॉपुलेशन शिफ्ट भी आता है। और यहाँ पे मैं आपको अगर इंसिडेंट याद करवाऊं, वो है कि एंजल क्लेयर जब डिसाइड करता है कि उसे ब्राजील चले जाना चाहिए और वहां जाके खेती बाड़ी वो करेगा, अपने जो एग्रीकल्चर लर्निंग है वो अप्लाई करेगा, तो ये जो लैटिन अमेरिका है, दैट वाज द स्पेनिश कॉलोनी ऑन दैट टाइम। तो वहां क्यों जाएगा? इस वजह से कि these territories are all under the control of the western powers. वहां पे जो यूरोपियन लोग होते थे उनको बड़ी बड़ी जमीनें अलॉट कर दी जाती थी कि ठीक है आप यहाँ पे आए और यहाँ रहें। अमेरिका इसी तरह आबाद हुआ। ग्रेजुअली यूरोपियन लोग शिफ्ट हुए हैं और उनको लैंडलॉर्ड्स बनाया गया है वहां पे। और एक और क्या पहलू था कि पॉपुलेशन शिफ्ट भी बहुत ज्यादा नजर आता है। शहर बढ़ रहे थे और बड़े बड़े शहर बन रहे थे। पीपल सीकिंग बेटर लिविंग कंडीशन फॉर देयर families left everything and populated big cities in search of work. They lived in a very bad condition with long working hours. आज भी अगर आपको पता है तो फैक्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। 12-12 घंटे ड्यूटी होती है लोगों की, और उनकी पे इतनी होती है कि वो खाना खा सकते हैं सिर्फ।
ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी तरह से नहीं हो पाती और काम 12 घंटे करना पड़ता। Therefore, drinking and the abuse were frequent in the family lives. ये खास तौर पे हमें हार्ड टाइम्स में काफ़ी नज़र आता है। फिर बहुत ज़्यादा काम करता है बंदा तो उसे फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो या तो ड्रिंकिंग करेगा या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ चला जाएगा और फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ होंगी। ये सारी सिचुएशन जो है रिजल्ट होती है एक लार्जर स्ट्रक्चर का। जो चीज़ कल लास्ट डे से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि इन सारी चीज़ों का कॉज क्या होता है। सोशियो पोलिटिकल लार्जर स्ट्रक्चर इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल for your fate, for your accident, for your troubles, for everything else. Individual is the product of the society and the culture. लेकिन यानी ट्रेजेडी अगर देखें तो दो तरह से आती है, लार्जर पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर एंड दूसरा आपका माइंडसेट। अगर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो फिर आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, वेल कंस्ट्रक्टेड माइंड है आपका, वेल फॉर्म्ड माइंड है, वेल ट्रेन्ड माइंड है, तो आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और अगर स्ट्रक्चर बुरा है और आपका जहन उसकी रिफ्लेक्शन होता है अक्सर, अगर आपने से खुद को कंट्रोल ना किया और एजुकेट ना किया, वेल ट्रेन्ड ना किया तो फिर आप सफर करेंगे। अगर सिस्टम अच्छा है, आपका जहन ठीक नहीं है, फिर भी आप सफर करेंगे। यानी दोनों साइड्स में दोनों तरह से इंपॉर्टेंट्स है। क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाती, आपका अपना रोल उसके अंदर मौजूद है। सिस्टम बुरा है और आपका जहन वेल ट्रेन्ड और वेल माइंड है, वेल एजुकेटेड है, तो आपकी सफरिंग एलिवेट हो सकती है। यानी लार्जर सोशल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल के रोल को हम और बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि एक ही आर्टिकल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। खासतौर पे आप देखें करैक्टर का क्या फीचर है जो ट्रेजेडी की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, वो है। अब देखें एक बड़ा कार्ल गुस्ताव योंग का स्टेटमेंट देखें। ये फ्राइड के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट था साइको एनालिसिस का, द पर्सनैलिटी डिटरमिन्स द फेट एंड लाइफ। वो कह रहा है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है डिटरमिन्स द फेट ऑफ लाइफ। जो कुछ आपके साथ होने वाला है आपकी अपनी पर्सनैलिटी डिटरमिन करती है। कुछ लोगों को तो हम मिलके उनसे बात करके काफी आइडिया लगा सकते हैं कि ये जिंदगी में सफर करेंगे या जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे, क्योंकि कामयाबी, दौलत कमाना, सक्सेस लेना, कामयाबियां लेना, ये आपके माइंड सेट पे बड़ा डिपेंडेंट है कि आप कैसा माइंड कैसा है आपका। क्रिएटिव हैं, आउट ऑफ बॉक्स जा सकते हैं, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेन्ड है, तो फिर आपको डिसीव करना मुश्किल है, आपको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है और आपको रोकना बहुत मुश्किल है कि कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आप 10 नाकामियों के बाद भी अपने पांव पे फिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप हार नहीं मानेंगे और अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। और मोस्टली तो सक्सेस नाम ही मेंटल सेटअप का है, मेंटल कंडीशन का नाम ही सक्सेस है। हो सकता है कईयों के पास कामयाबी हो लेकिन ज़हन की हालत उनकी ऐसी होती है कि वो सफर करते हैं, वो इंजॉय नहीं कर सकते अपनी वेल्थ और अपने स्टेटस को बिकॉज ऑफ देयर बैड माइंडसेट। So mindset and social setup both are responsible for your tragedy. Both are contributory to your failure or to your success. जैसे मैंने कल कहा था ना, जैम, अगर सिस्टम बुरा है और डबल रोटी आपकी गिरनी है, उसी साइड पे गिरनी है, आपको पता है सोशल स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो फिर अगर आप डिपेंड कर रहे हैं कि आप जैम किस साइड पे लगाते हैं, वो आपका मेंटल सेटअप है, जिससे आपकी सफरिंग एलिवेट हो जाएगी, मिनिमल हो सकती है। अगर एलिमिनेट नहीं हो सकती तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ को कांटा भी चुभ जाए तो उनके लिए क्यामत होती है और कुछ को कैंसर भी हो जाए तो वो मुस्कुराते नजर आते हैं।
और जिंदगी में जितना टाइम बचा है उसे बड़ी हंसी खुशी और खूबसूरती से गुजारते हैं। तो ब्यूटीफुल माइंड जो है ये आपको ब्यूटीफुल लाइफ देता है। यानी जैसे मिल्टन ने कहा था ना, माइंड हैज इट्स ओन प्लेस, इट कैन क्रिएट्स हेवन आउट ऑफ हेलन, हेल आउट ऑफ हेवन। सो मीन्स कि जहन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जन्नत भी बना सकता है या आपके लिए दोजक भी बना सकता है। तो आपका भी रोल है कि आप, so Hardy once said that tragedy, that is to say tragedy expresses a man's condition। हार्डी खुद कह रहे हैं कि मैं जो बंदे की अपनी कंडीशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज अ ट्रेजेडी। हिज इंस्टिंक्ट एंड डिजायर विल लीड टू द ट्रेजिक एंडिंग। जिस तरह की आपकी डिजायर होंगी, जिस तरह की आपकी इंस्टिंक्ट क्या आपकी मेंटल नेचुरल मेकअप है। दिस पार्ट इंट्रोड्यूसेस द करेक्टर ऑफ द टेस्ट क्लियर एंड एलिक। इसमें हम 3 करेक्टर के को जायजा लेंगे, उनकी ज़हनी हालत का जायजा लेंगे, सोशल स्ट्रक्चर वर्सेस मेंटल स्ट्रक्चर। तो 2 तरह से चूंकि हमने कहा कि ट्रेजेडी होती है। जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर हैं तो वो कहते हैं कि बीमार होने के लिए 2 चीजें चाहिए अगर आप बीमार होना चाहते हैं। एक आउटर सोर्स यानी जरासीम होने चाहिए, और दूसरा आपके अंदर विल भी होनी चाहिए कि मैंने बीमार होना है। क्योंकि अगर आपकी विल नहीं होगी तो जरासीम बेचारे क्या करेंगे। यानी दोनों चीजों का होना जरूरी है आपको सफर करना है अगर तो। So we will see the 3 characters, Tess, Claire and Alec. Tess compromise, inferiority, Claire's selfish, and Alec's brutality. All that makes Tess into the death step by step. तो देखेंगे सबका रोल क्या है, और स्पेशली टेस को कि ट्रेजिक एंडिंग की तरफ कैसे सारे लोग रोल प्ले करते हैं। तो मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम कम है, तो ये क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन अबाउट social background, social structure, and a role of the tragedy in the social background structure and individual structure। एक जनरल मैंने आपका माइंड बना दिया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे डिटेल में। आपके पास कुछ 10 मिनट हैं अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं।